Students, welcome back again. We are going to have our fourth lecture on dual nature of matter and radiation. So far we are dealing with the dual nature of radiation. After the completion of this topic, dual nature of radiation, we'll take up dual nature of matter. Okay, in the last lecture, if you remember, we have done the variation of change in intensity of light on stopping potential. So I hope you people are following the videos and noting down whatever study material I'm sending you on your notebooks, because if you are not aware of what we have done in our previous class, this what I'm going to teach you today will not be of any help to you. So you have to maintain the continuation, you have to maintain regularity in following the lectures. So lecture number 4 will be of any use to you if you have done the previous 3 lectures. So please do follow the videos, try to understand whatever is being taught to you, and in case you find any kind of doubt, please feel free to ask me. I will tell you, I will clarify your doubts and will help you in making the things more clear. Okay, so today I'm going to tell you about, last time I did with you, that what is the effect of change in intensity of light on stopping potential. Now let's come to the stopping potential. First of all, recap of what is stopping potential. Stopping potential is that minimum negative potential given to the anode with respect to the cathode at which all the electrons coming with the maximum kinetic energy are stopped and the photoelectric current becomes zero. So if you have done the photoelectric effect experiment, if you understand what the experiment was all about, उसमें मैंने आपको बहुत clearly बताया था कि क्या होता है. स्टार्टिंग में हम लोग लेकर चलते हैं एनोड पोटेंशियल को जीरो लेकर चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड. उस समय हमारे सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाते हैं एनोड के पास, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर हैविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. देन उसके बाद हम थोड़ा सा देन द जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हुज एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंट टू मेक देम रीच द एनोड और हुज एनर्जीज आर नॉट as much as they require to reach at the anode. मतलब उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती जितनी एनर्जी उनको एनोड के पास पहुंचने के लिए चाहिए, तो वो वही रुक जाते हैं. दे क्रिएट स्पेस चार्ज क्रिएट करते हैं. देन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द एनोड पोटेंशियल, और जैसे जैसे एनोड पोटेंशियल बढ़ता जाता है वैसे वैसे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्पेस चार्ज जो है वो एनोड के पास पहुंचते जाते हैं, एंड दिस मेक्स द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज. ठीक है, तो ये सब था हमारा एक्सपेरिमेंट के बारे में. आपने variation of intensity किया. Today I am going to tell you about the variation of change in frequency. What happens when the frequency of the light is changed in that photoelectric experiment. ठीक है, हमने क्या करना है अब, मैथमेटिकली we'll try to prove it. हमने एक फोटोइलेक्ट्रिक आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने आपको करवाई थी. दैट वाज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस 5 इज द वर्क फंक्शन. यहां पर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और आपको लास्ट टाइम मैंने डेरिवेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल में ये भी बताया था कि एट स्टॉपिंग पोटेंशियल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक maximum kinetic energy, and it is h mu minus 5. From here we got the formula for stopping potential, and stopping potential is equal to h by e mu minus h mu naught upon e. So students, watch it carefully. देखो ये जो फैक्टर है, दिस इज वर्क फंक्शन, एंड फॉर ए गिवन मेटल इट इज फिक्स्ड, इट्स कांस्टेंट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज अनलेस एंड until you change the metal. And h is a constant, e is the charge on an electron, they are constant. So stopping potential here, stopping potential is directly proportional to the frequency. ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हम फोकस करेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा क्या होता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट it is the
potential given to minimum potential given to the anode so that at this potential all the current becomes zero. मतलब ये वो पोटेंशियल एनोड को दिया गया मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिसके ऊपर की आपकी फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. यानी कि वेरिएशन ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या होगा. सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ बताती हूँ. देखो ये इस साइड मैंने ले ली है एनोड, दिस V इज एनोड पोटेंशियल. ध्यान देना बेटा, ये चैप्टर बहुत आसान है. इसमें सिर्फ 2-3 ही चीजें जो घूम फिर के बार बार हम उन्हीं चीजों को रिपीट किए जा रहे हैं, उसी से सारा कुछ हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं. एंड दिस इज माय फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अब देखो मैंने क्या किया है, वही लेनार्ड्स का एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट. इन दैट एक्सपेरिमेंट नाउ आई हैव केप्ट द, मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रख रही हूं. क्या रख रही हूं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज केप्ट कांस्टेंट. ठीक है. अभी लास्ट टाइम हमने किया था, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी मीन्स द मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स. ठीक है. अब मैंने इंटेंसिटी का नंबर, इंटेंसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ फोटॉन्स जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं. अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई है तो मतलब है कि आई एम मतलब जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, नाउ दैट लाइट इज कैरिंग मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स. बट इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज केप्ट कांस्टेंट, तो एक चीज कांस्टेंट हो गई जो है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं दैट इज कांस्टेंट. ठीक है, दैट इज कांस्टेंट. अब देखो हमने इंटेंसिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमने सिर्फ क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है. नाउ वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है कि अगर पहले मेरी फ्रीक्वेंसी थी ν1, अब मैं क्या कर रही हूं, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराऊंगी ν2. मतलब पहले जो इंसिडेंट रेडिएशन मेरे पास आई, पहले जो इंसिडेंट रेडिएशन आई वो कितनी एनर्जी कैरी कर रही थी? hν1. क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, हमें पता है कि E इज इक्वल टू hν होती है. एनर्जी विच द फोटॉन्स आर कैरिंग विद देम इज ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी. इंटेंसिटी हैज नथिंग टू डू विद दैट. इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स. Frequency is related to the energy carried by a single electron. जब मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब है कि अगर मेरे पहले 10 फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे थे तो बाद में भी 10 ही फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे. नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया. फ्रीक्वेंसी मेरी थी पहले ν1, इसका मतलब है कि जो पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनके पास जो एनर्जी थी वो थी, हर इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी? hν1. ठीक है. अब इन इलेक्ट्रॉन्स, इन फोटॉन्स ने क्या किया कि जब ये सरफेस ऑफ द मेटल पे आए, इन्होंने इंटरैक्ट किया विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट सरफेस. ठीक है. जब सरफेस पे इन्होंने इंटरैक्ट किया, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो µ1 है आपकी, ν1 फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यानी कि जो एनर्जी एक फोटोन कैरी कर रहा है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए. जब इस फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा तो जो इसकी एनर्जी होगी वो कौन ले लेगा? इलेक्ट्रॉन. अगर वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को बिना वेस्ट किए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि इलेक्ट्रॉन की मर्जी होती है कि वो उस एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करता है. जो वर्क फंक्शन है वो तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन टू कम ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल है ही है, वो तो फिक्स्ड है. अगर ये जो एनर्जी जो उसको मिल रही है, कहां से मिल रही है? फोटोन से मिल रही है. उस एनर्जी को वो यूज करता है इन ओवरकमिंग इट्स वर्क फंक्शन, और उसके बाद जो एनर्जी बच जाती है, अगर बशर्ते कि वो जो फोटोन है वो ज्यादा एनर्जी, उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी लेके आ रहा है,
तो जो एनर्जी बच जाती है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसको वेस्ट कर देते हैं इन मेकिंग द कोलिजन्स विद अदर इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कैलकुलेटिव वे से चलते हैं, वर्क फंक्शन के बाद जो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है वो उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी बना लेते हैं, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट हो जाती है, उस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो कंडीशन हमारी आ गई कि अब क्या हो गया, कंडीशन पहली आ गई कि इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। आई सपोज मैंने ν1 उसके ऊपर इंसिडेंट करवाई, इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये जो एनर्जी कैरी कर रहे थे वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। सपोज हमारे पास 10 फोटॉन्स आए थे, ठीक है, 10 फोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन, सपोज मैंने यहां पर लेकर चली कि 10 फोटॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 10 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब 10 इलेक्ट्रॉन जो वो निकालेगा उनकी एनर्जी जो है सबकी सेम नहीं होगी, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी है कि वो उसके पास आई हुई इंसिडेंट एनर्जी का इस्तेमाल वो कैसे करता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो वर्क फंक्शन के बाद जो एनर्जी बच जाती है उनको टोटली वेस्ट कर देंगे, कुछ होंगे जो कुछ पार्ट को वेस्ट करेंगे, कुछ को काइनेटिक एनर्जी बनाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी सारी जो बच जाएगी उसको अपनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब वो बन जाएगी। तो आपके पास सपोज पहले आपने 10 फोटॉन्स आए, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, 10 में से हम मान लेते हैं कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जिनके पास कितनी एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर वो निकले। तो जब याद रखिए, और ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो इन चारों की वो क्या होगी, सेम, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी अगर ν1 मिल रही है सबको, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट केस में निकलेंगे इनके पास सबके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी। तो जब हमने एनोड पोटेंशियल को 0 रखा उस समय क्या था, एनोड पोटेंशियल इज 0 विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड के पास पहुंच रहे थे वो सिर्फ, मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ किसके दम पर, अपनी काइनेटिक एनर्जी के दम पर पहुंच रहे थे, ठीक है। तो उसके कारण सपोज हमारी ये थी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं हमारे मैक्सिमम काइनेटिक वाले, बाकी जो हैं वो रेंज कर रहे हैं 0 से मैक्सिमम तक, ठीक है। अब हमने एनोड पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप एनोड पोटेंशियल को बढ़ाओगे अब क्या होगा, जो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी धीरे 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 कहाँ जाना शुरू कर देंगे, एनोड के पास, जिसकी वजह से आपकी एनोड जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो इंक्रीज करेगी। तो देखो ये हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हुई, ठीक। अब क्या हुआ, जब पोटेंशियल मेरा इतना बन गया, ठीक है, सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो एनोड ने 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो खींच लिए। 4 तो उसने पहले ही लिए थे, तो जैसे हमने पोटेंशियल बढ़ाया 6 भी उसने और खींच लिए। तो अब क्या हो गया, अब 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो गई। अब अगर आप एनोड पोटेंशियल को और भी बढ़ाओगे तो क्या इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पर बाबा कहां से आएंगे, 10 ही तो थे, 10 के 10 तो उसने खींच लिए, अभी कोई 11th है ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया एनोड का जो पोटेंशियल है वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जनरेट नहीं करता। जनरेट कौन कर रहा है, जनरेट कर रहा है कैथोड, एमिट कर रहा है कैथोड। तो कैथोड ने अगर 10 ही एमिट किए थे, वो 10 के 10 जब यहां पहुंच गए, आप नो मैटर आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अब आगे क्यों है ही नहीं, तो जाएगा कहां से, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स कांस्टेंट। इसको बोलते हैं हम, कौन सी करंट होती है ये, सैचुरेशन करंट, ठीक है। लीव दिस केस नाउ, ये किसके साथ था, ये था हमारा µ1 फ्रीक्वेंसी के साथ। अब क्या किया मैंने, अब मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इंटेंसिटी रिमेन्स द सेम। इंटेंसिटी रिमेन्स द सेम का मतलब हुआ 10 फोटॉन्स पहले आ रहे थे, 10 ही अब आएंगे, ठीक है, 10 ही अब आएंगे। अब जो इनकी एनर्जी होगी वो कितनी होगी, hν2, क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी जो आ रही है, जो एनर्जी उनको मिल रही है वो क्या है, अब पहले वाले केस से ज्यादा है। 10 इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो ज्यादा एनर्जी, 10 फोटोन ज्यादा एनर्जी कैरी कर कर अब आ रहे हैं। पहले के केस में उनकी एनर्जी कम थी, लेकिन अब वो ज्यादा एनर्जेटिक होकर आ रहे हैं, लेकिन नंबर रिमेन्स द
सेम, यानी 10 थे अब भी 10 ही हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने इनकी इंटरेक्शन हुई, अब क्या हुआ कि सपोज पहले सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकल रहे थे जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन क्योंकि अब इंसिडेंट एनर्जी भी ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेस्ट करने के बाद भी, सपोज अब वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है? 6, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई ना। तो पहले जो डेफिशिट थे, अब उन इलेक्ट्रॉन्स ने भी क्या कर लिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन कर ली, यानी कि अब वो उसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं सिर्फ वो ही हैं जो वेस्ट नहीं कर रहे, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जीज, जो इंसिडेंट एनर्जी उसको वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पार्ट वो वर्क फंक्शन में यूज कर रहे हैं और फिर सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईच इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो इसका मतलब है कि अब यहां पर अगर हमने यहां पर क्या बढ़ाई है, यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है एनर्जी बढ़ाई है। एनर्जी बढ़ाने का मतलब है कि हर फोटोन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो बढ़ गई है। तो जब वो इंटरैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है कि अपना वेस्टेज भी कर देनी है, ठीक है, और कुछ ने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है और कुछ ने क्या करना है, थोड़ी कम वेस्ट करनी है। तो पहले अगर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे थे, अब मान लो वो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जीरो पोटेंशियल पे अब 6 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं एनोड के पास, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स होगी एट जीरो पोटेंशियल। तो सपोज फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारी स्टार्टिंग में इतनी है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने एनोड पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब आपने एनोड पोटेंशियल को बढ़ाया तो क्या होगा कि पहले 6 थे, अब बाकी के जो 4 बच गए उन्होंने भी जाना, वो क्या होंगे, वो भी यहां से निकलना शुरू करेंगे। ऐसे ना, और एक पोटेंशियल पे जाके, ठीक है, एक पोटेंशियल, ये यहां से कांस्टेंट हुआ था, ये भी यहां से, ये यहां पर दोनों का सेम एक ही पोटेंशियल होगा जिस पर ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक यहां पर पहुंचे तो पहले आपने एनोड पोटेंशियल बढ़ाया, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाकी के 4 बच गए थे वो भी क्या हो गए, खिंच के चले गए। इस पोटेंशियल पर आए, जब इस पोटेंशियल पर आए तो क्या हुआ, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे। अब आप जितना मर्जी पोटेंशियल बढ़ाओ लेकिन कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा कोई, तो खींचेगा किसको। तो इसका मतलब है यहां पर आपका ये, सॉरी मैंने यहां पर ऐसे बनाया ना, दिस इज लाइक दिस, ये देखो। तो उसके बाद अब देखो, जब आपने फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस आ गया, सेकंड केस में क्या हुआ, अब आपकी ये इंक्रीज हुई क्योंकि ये 6 थे, इसने 4 को खींच लिया। इस पोटेंशियल पे जाकर इसने बाकी के सारे 4 भी खींच लिए हैं। अब अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे भी तो देयर विल बी नो चेंज इन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी यहां पर क्या हो जाएगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी के साथ भी करंट क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। इसका मतलब है, क्योंकि आपको पता है सैचुरेशन करंट जो है दैट इज, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, क्योंकि मोर द नंबर ऑफ इंटेंसिटी, मोर द इंटेंसिटी, मोर विल बी द नंबर ऑफ photons and more will be the number of photo electrons। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमें एनोड पोटेंशियल चाहिए होगा उनको वहां से खींचने के लिए, ठीक है। और सैचुरेशन करंट जो होती है वो करंट होती है जिसके बाद फर्दर इंक्रीज करने पर, आपको फर्दर पोटेंशियल को इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज नहीं होती। तो अगर हमारी इंटेंसिटी सेम है, नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, तो दोनों ही जो फ्रीक्वेंसी की लाइट्स हैं वो क्या करेंगी, दिस इज फ्रीक्वेंसी μ1, तो यहीं पर फ्रीक्वेंसी μ2 का भी सैचुरेशन होगा, क्योंकि सैचुरेशन करंट जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है, वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। नाउ कम बैक कि आप क्या कर रहे हो, अब आपके पास ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां पर ज्यादा है, जो μ2 वाला केस है, आपने देखा ना
कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गई। अब आपने इसको नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू कर दिया, ठीक है, पहले बढ़ाया, फिर इसको जीरो किया, फिर नेगेटिव देना शुरू कर दिया। μ1 पर जब हम आए, μ1 फ्रीक्वेंसी के साथ हम इसको नेगेटिव पर ला रहे हैं, यहां पर आकर क्या होगा, जैसे जैसे हम नेगेटिव देना शुरू कर देंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को वो रिपेल करेगा। तो मिनिमम पोटेंशियल जिसके ऊपर वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करेगा, उसको उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी जब μ1 थी तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एज कंपेयर टू μ2 कम थी इलेक्ट्रॉन्स की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं। तो कम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम चाहिए। तो लेट अस से ये आ गया हमारा V1, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आके स्टॉप हो जाएंगे इस नेगेटिव पोटेंशियल पर। क्योंकि μ2 फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ज्यादा होगी। उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए जो हमें नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए वो भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। इसीलिए ये आ गया हमारा -V2। तो इस केस में आप देखो कि क्या होता है, इस केस में जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो और इंटेंसिटी को कांस्टेंट करते हो, सैचुरेशन करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, पिंच ऑफ वोल्टेज रिमेन्स द सेम। एक ही वोल्टेज पे जाके वो दोनों फ्रीक्वेंसीज की लाइट जो है वो करंट को कांस्टेंट, मैक्सिमम और कांस्टेंट कर देंगी, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल उन दोनों को चाहिए वो दोनों का डिफरेंट होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी चेंज करने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रॉन चेंजेस। अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की चेंज होगी तो ऑब्वियसली उसको स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो भी चेंज होगा। ये जो मैंने आपको यहां समझाया वो इसीलिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे बुक्स में कि मैम ने जब फ्रीक्वेंसी μ1 ली थी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतनी थी, जब μ2 ली तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गई। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैम तो अभी बोल रही है कि कोई असर ही नहीं होता है इससे लेने से, फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से। तो फिर यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट दोनों की सेम क्यों नहीं है एट जीरो पोटेंशियल? भाई जीरो पोटेंशियल पे द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कम इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। इसीलिए ये वाली करंट में वेरिएशन आएगी। फिर जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे दे विल अटेन द मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज सेम होगी, एंड आफ्टर दैट दे अटेन द कांस्टेंट सैचुरेशन वैल्यू। बट जो पोटेंशियल है रिक्वायर्ड टू स्टॉप, इनको स्टॉप करने के लिए द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी डिफरेंट। आई होप इट इज क्लियर। मैंने बहुत इसको एक्सप्लेन कर दिया है, खींच दिया है। नाउ कम्स व्हेन वी हैव, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे ग्राफ प्लॉट करना है इसका। इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ये आ गया मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आ गई मेरी फ्रीक्वेंसी। कंपेयर इट विथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है वो? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां देखो ये जो m है ये आ गया, बिकॉज दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। x एक्सिस आ गई आपकी दिस फ्रीक्वेंसी। तो m क्या आ गया मेरा यहां पर? m इज h अपॉन e, एंड व्हाट इज c? दैट इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस इज माइनस h अपॉन e इंटू म्यू नॉट। तो मेरा ये ग्राफ ये होगा। ठीक है, ये आ गई मेरी, ये आ गया मेरा टेंजेंट थीटा, दैट इज स्लोप, दैट इज इक्वल टू h अपॉन e। दिस इज माई ग्राफ। और ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच देयर इज, आप देखोगे बिलो विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बिलो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो कोई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, कोई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड नहीं होगा उसको स्टॉप करने के लिए। ये क्लियर हुआ? नाउ लेट्स कम टू द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये क्वेश्चन बहुत बार, दिस इज द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन द JNK बोर्ड पेपर फ्रॉम दिस चैप्टर। वो आता है
state the laws of photoelectric emission or photoelectric effect and explain them on the basis of the Einstein's photoelectric equation. ठीक है, तो मैं जल्दी से, मैंने सब लिखा हुआ है, मैं जल्दी से सम अप करूंगी कि what are the laws of photoelectric emission. Basically we have made the observations from the, मतलब जो साइंटिस्ट थे लेनार्ड एंड मिलिकन, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था लेनार्ड ने, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने वहां से जो ऑब्जर्व किया था उसको उन्होंने सम अप किया इन द फॉर्म ऑफ 4 लॉज. जो ऑब्जर्वेशंस वहां से बनाई गई उसको उन्होंने मतलब प्रिसाइजली 4 लॉज के फॉर्म में हमें दिया टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, पहली चीज, ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं. जो कुछ मैं यहाँ पर मैंने लिखा है इसको अब फर्दर समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही है जो हमने एक्सपेरिमेंट में किया. इंटेंसिटी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहला लॉ उन्होंने कहा कि फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कि अगर आपके पास एक मटेरियल है फिक्स्ड, आपने वही मटेरियल लिया फॉर ए गिवन मटेरियल एंड फॉर ए गिवन frequency of incident radiation, ठीक है, and that radiation must be, and that frequency of that radiation must be above the threshold frequency. The photoelectric current is directly proportional to the intensity of light. किसके ऊपर वो directly proportional होती है? Intensity of light. And saturation current is directly proportional to the intensity of incident रेडिएशन. तो सेचुरेशन करंट जो है वो भी किसके ऊपर डिपेंड है? इंसिडेंट रेडिएशन के. मैंने अभी आपको बताया कि सेचुरेशन करंट ज्यादा क्यों होती है इंटेंसिटी के कारण, क्योंकि इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ more intensity means more number of incident photons. More number of incident photons means more number of photoelectrons. More number of photoelectrons means we require more positive voltage of a node to bring all the electrons from the cathode to come on the anode. ठीक है, तो देखो पहला क्या हो गया कि कोई भी फोटोसेंसिटिव मटेरियल है having suitable frequency. Suitable means above the threshold frequency. The frequency is fixed. ठीक है, frequency को change नहीं कर रहे हम. For a given material, for a given frequency, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of light, and the saturation current is also directly proportional to the intensity of light. तो मैंने यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट किया है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट. यानी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखो, मटेरियल को सेम रखो, यू कीप ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, व्हाट हैपेंस? द फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, क्योंकि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो. जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो वो उसके साथ साथ क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट आउट हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वही तो इलेक्ट्रॉन्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, वो भी इंक्रीज हो रही है. दिस इज आवर फर्स्ट लॉ. Now, for a given photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency below which no photons are emitted, howsoever high is the intensity of incident radiation. This frequency is called threshold frequency. So, this is just the definition of threshold frequency. कि हर एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल का कोई ना कोई एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है. एंड व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? हर मटेरियल को की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे, जिसके बिलो की फ्रीक्वेंसी अगर आप उसके ऊपर इंसिडेंट करवाओगे तो उसमें से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा, चाहे आप इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा लो. ठीक है, हर एक मटेरियल का अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. हर एक मटेरियल जो है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है. तभी तो हम वर्ड यूज करते हैं सूटेबल. तो सूटेबल मीन्स कि उस मटेरियल की सूटेबल फ्रीक्वेंसी मीन्स द फ्रीक्वेंसी विच इज हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट गिवन मटेरियल. तो इसका मतलब है कि जब आप इंटेंसिटी चाहे कितनी भी बढ़ा दो, ठीक है, तो आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट आउट होंगे अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी. ठीक है, तो बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट स्टार्ट.
Now, what happens above the threshold frequency? The stopping potential, or equivalently the maximum kinetic energy of the photoelectrons, is directly proportional to the frequency of the incident radiation, but is independent of intensity. यही तो हमने अभी पढ़ा, जो पिछले वाला मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया आपको, कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की लाइट आप इंसिडेंट करवाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिमेन्स द सेम, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट द मैक्सिमम एनर्जी कैरिड बाय ईच फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय दिस प्रोसेस इंक्रीजेस. क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इंक्रीजेस, एंड व्हेन द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इंक्रीजेस कीपिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट, क्योंकि हमने इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया है. व्हेन द इंटेंसिटी डज नॉट चेंजेस, the number of photons, incident photons, does not change. But when we increase the frequency, just frequency, the energy associated with each photon increases. It means the maximum energy associated with the photoelectrons emitted out this way also increases. अगर maximum kinetic energy increase करती है तो obviously the potential which is required to stop them, known as stopping potential, also increases. So stopping potential is directly proportional to the frequency, and photoelectric current is directly proportional to the intensity. ठीक है, दो चीजें हमारी क्लियर हो गई. यहां पर मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ भी ग्राफ बनाया है और स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ भी बनाया है. ये पीछे बनाया अभी. यहाँ ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसके जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अटेन नहीं होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो ही रहेगा. वो रीजन बता दिया मैंने. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. ठीक है, द टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट रेडिएशन एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इज वेरी स्मॉल, इवन लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द कोलिजन, ठीक है, द कोलिजन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द फोटोन एंड the electron is an instantaneous process. Means this is one-to-one collision. One photon interacts with one electron. Whatever the energy is carried by one photon is transferred to the electron, and this transference of the energy takes place in a very short span of time. It is of the order of 1 nanosecond. So there is no time lag कि इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, फोटोन उसके पास आता है, वो अपनी मर्जी से उस एनर्जी को लेता है, फिर मजे मजे से वो बाहर आता है. ऐसा नहीं होता. इट इज an instantaneous process. Within a fraction of second it happens. इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन इंसिडेंट हुआ, एक्सचेंज हुई एनर्जी, एंड द फोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली कम्स आउट. ठीक है, देयर इज नो टाइम लैग. सो these are the laws of photoelectric effect. तो क्या है पहला लॉ? पहले लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंटेंसिटी. क्या है लॉ ऑफ इंटेंसिटी? कि विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस. ठीक है, तो फॉर ए गिवन मटेरियल कैसा होना चाहिए? मटेरियल आपका कैसा होना चाहिए? नाउ कम्स the explanation of laws of photoelectric emission using photoelectric आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है, अभी जो आपने लॉज पढ़े, पहला लॉ आया एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इज एक्सप्लेनेशन. पहले लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंटेंसिटी. क्या है लॉ ऑफ इंटेंसिटी? दैट विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस कीपिंग द for a given material and for a given frequency of light. ठीक है, next is the law of the concept of threshold frequency. For every given material there exists a certain frequency called threshold frequency below which no photoelectric emission takes place. ठीक है, फिर आया law of kinetic energy और law of frequency भी बोलते हैं. उसको बोलेंगे हम कि for a given material and for a given intensity of light, ठीक है, the kinetic energy, the maximum kinetic energy associated with the photoelectrons is directly proportional to the frequency of light. So is the stopping potential. And then time lag वाला आपने पढ़ लिया, that it is a instantaneous process. तो ये चार लॉज है. और आपने एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने आपको करवाई थी. वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी? द काइनेटिक maximum kinetic energy associated with the photoelectrons emitted is equal to h mu minus
phi is the work function h nu minus h nu naught, where h nu naught is the threshold frequency. इसको मैं ऐसे करके लिखूंगी, ठीक है. दिस इज माय फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. अब आप ध्यान से देखिए, मैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से सारे लॉज एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है. देयर इज द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी. पहला है एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी. द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मीन्स द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सर्फेस पर यूनिट टाइम. इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बता दिया कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम बढ़ाना. एज ईच फोटोन, एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट कर सकता है, तो जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे. दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो मैग्नीट्यूड है दैट हैज नथिंग टू डू विद द फ्रीक्वेंसी, ठीक है. फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड, नो डाउट कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट तभी होगी, एमिट आउट होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तभी आएगी जब कि लाइट ऑफ सब सूटेबल फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर फॉल करेगी, ठीक है. लेकिन एट सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी यानी अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो मैग्नीट्यूड है दैट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी. इट हैज नथिंग टू डू विद द फ्रीक्वेंसी, ठीक है. आप फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर दो, उसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि इंटेंसिटी चेंज नहीं करेंगे. नाउ कम्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है. और इस इक्वेशन से कैसे वो पता चलती है हमें, देखो, अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर म्यू नॉट, अगर आप म्यू नॉट को लेस देन म्यू रखते हो, ठीक है, तो बताओ ये जो काइनेटिक एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो क्या होगी, नेगेटिव. क्योंकि ये टर्म जो है, अगर म्यू नॉट इज लेस देन किसके आए, म्यू, दिस थिंग इज राइट ना, म्यू नॉट, म्यू माइनस म्यू नॉट, तो ठीक है. तो अगर आपका म्यू नॉट इज, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, मतलब कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो बताओ ये वाली क्वांटिटी आपकी नेगेटिव आएगी. ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आने का मतलब है आपका राइट हैंड साइड नेगेटिव आएगा. अगर ये वाली कम है और ये वाली ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है दैट कम्स आउट टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, एंड यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, सो दिस थिंग इज बेसलेस. तो इसका मतलब है ये कोई बात ही नहीं बनती है, ठीक है. इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, नेगेटिव होगी ही नहीं. इसका मतलब है कि इट एक्सप्लेन्स कि yes there must be some minimum frequency called the threshold frequency below which no photo electron gets emitted out, ठीक है, कि तब तक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता जब तक कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी नहीं होती. नाउ कम्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी वाला जो लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. यस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ये क्वेश्चन हमें बताती है बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट, एच इज कॉन्स्टेंट, एंड mu naught, the threshold frequency is also constant for a given material. तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, द काइनेटिक एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती जाएगी और उनको स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल हमें चाहिए वो भी बढ़ेगा. तो इट मीन्स विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेज. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग. एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग भी हो जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन. सो जो एब्जॉर्प्शन है, thus the absorption of energy from a photon by a free electron inside the metal is a single event. ठीक है, वो एक सिंगल इवेंट है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ही एक फोटोन की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है. इट इन्वॉल्व्स एनर्जी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन वन लंप. एक ही झटके में वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एज इन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट. अभी मैं आगे यही पढ़ाऊंगी आपको. हेंस देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ ए फोटोन एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. फर्स्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट डाउन द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, देन स्टेट द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड एक्सप्लेन देम ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो आप वो आसानी से कर सकते हैं, ये वही चीजें घूम फिर के आपको बतानी है. Now comes कि how the wave theory of light failed
टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तभी तो साइंटिस्ट ने सोचा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, तभी तो उन्होंने लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर किया था। ठीक है, तो यहां पर आया कि अगर हम लाइट को सिर्फ वे माने तो याद करिए आप अपना वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। ठीक है, याद करिए अपना वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। वेव ऑप्टिक्स में आपने कहा था कि लाइट जो है दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशंस होती हैं। उन वेरिएशंस के कारण हमारे पास लाइट जो है वो फॉर्म होती है, एंड लाइट कैरीज एन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, उसके पास जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब हम वेव ऑप्टिक्स में बोलते हैं ना, दैट मीन्स लाइट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, कितनी लाइट एनर्जी, जब हम किसकी बात करते हैं, इंटेंसिटी की, किसमें, वेव अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में इंटेंसिटी मीन्स द नंबर ऑफ photons, but in wave theory intensity means the light energy incident per area per unit time। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है। और वैसे भी हमने जब वेव ऑप्टिक्स किया था तो आपको बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो अगर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है तो जैसे ही मैं क्या करती हूँ, इंटेंसिटी बढ़ाती हूँ, क्या बढ़ाती हूँ, इंटेंसिटी बढ़ाती हूँ, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इंक्रीजेस। जब एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि जो एनर्जी डेंसिटी है उसके साथ एसोसिएटेड, ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी, जब ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, तो ऑब्वियसली उनके पास क्या होगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो इसका मतलब है कि हायर द इंटेंसिटी, यहां पर क्या कॉन्सेप्ट यूज हो गया कि हायर द इंटेंसिटी हायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द लिबरेटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो सपोज हम ये कहें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं, दे आर, अगर उनकी इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, किसकी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। किसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव भी बढ़ जाएगी। जब वेव की एनर्जी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो एमिट आउट करेगा उनके पास जो एनर्जी होगी वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ ये जो रिजल्ट आया ये तो कॉन्ट्रेरी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा कि इंटेंसिटी का तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कुछ लेना देना होता ही नहीं है, बट वेव थ्योरी तो उल्टा बता रही है। वो बता रही है कि इंटेंसिटी बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगी। हेंस पहला पॉइंट तो ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। अब दूसरा पॉइंट आया कि अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, वट एवर बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, incident light of given intensity over sufficient time must be able to impart work function energy to all the free electrons so that they leave the surface। यानी कि अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी का कोई लेना देना नहीं होता। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। इसमें क्योंकि फॉर्मूला मैंने जो पीछे लिखा उसमें लिखा हुआ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइट की बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम थ्योरी वाला जो है उसमें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है। तो यहां पर ये कहता है कि अगर आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें,
ठीक है, जितनी चाहे मर्जी कर दें, लेकिन वट एवर बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अगर गिवन इंटेंसिटी की लाइट जो है वो एक सफिशिएंट एक एरिया के ऊपर पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस इंटेंसिटी की वजह से जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो दे आर एबल टू कम अप ऑन द सरफेस, मतलब वो अपना वर्क फंक्शन इंटेंसिटी से जो है वो जो बिकॉज इंटेंसिटी का मतलब वेव थ्योरी में है एनर्जी, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया इसने, कि इससे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स करवा रहे हैं एट एनी फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर सके। तो फेल हो गया ये वाला पॉइंट भी। नाउ ये कह रहा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। इसका मतलब है इंटेंसिटी बढ़ाओ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी जो है, बट अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमें पता है काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू frequency, and number of photo electrons is directly proportional to intensity और frequency तो उसमें related होते ही नहीं है, तो ये point भी इनका invalid हो गया। अब जब हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि एनर्जी ऑफ लाइट वेव जो है वो स्मूथली एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ओवर अ गिवन एरिया। ठीक है, जब एक लाइट जो है अपनी वेव फ्रंट आ रही है लाइट से, लाइट के सोर्स से, जब वो किसी सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो जो एनर्जी है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर एरिया। तो वो जो एनर्जी वो कैरी कर रही है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स बराबर लेंगे। ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को बाहर आना है तो उसको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वो उस रेडिएशन से इतनी एनर्जी ना गेन कर ले जितनी कि उसको वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए चाहिए। तो दिस इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तब तक लाइट से रेडिएशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं जब तक कि वो अपने वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंगली वो लाइट एनर्जी जो है वो उससे ना ले बिकॉज जो एनर्जी आ रही है वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल रही है, वो पूरे एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं उनमें मिल रही है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो इट मीन्स कि ये उस पॉइंट के भी कॉन्ट्रेरी है जिसमें कि हमें कहा जाता है कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द incidence of the light and the ejection of the photo electron। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, है कुछ भी नहीं है, वही सेम चीज मैं बार बार रिपीट किए जा रही हूँ ताकि आप सुने और आपके दिमाग में वो चीज डले और आप अच्छे से उसको करें। ये सब सेम वही फ्रीक्वेंसी वही इंटेंसिटी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज अपना ये लेक्चर खत्म करती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं फोटो सेल्स के बारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बताऊंगी और उसकी एप्लीकेशंस बताऊंगी, क्योंकि एप्लीकेशंस पूछी जाती है, एंड देन वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट। इस पोर्शन में से न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो थ्योरी मैंने जितनी भी पढ़ाई है इन्हीं के बेसिस पर ही हम आगे न्यूमेरिकल्स और ग्राफिकल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आंसर देने के दे पाएंगे। सो बिफोर डूइंग दैट यू मस्ट गो थ्रू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स so that we will be able to solve the numericals। Thank you। I hope कि आप लोग पढ़ रहे हो। By the time, stay home, stay safe, goodbye।